Good morning, students. I am Chauhan sir from Indo-Bharat International Public School. Again, continue my topic for class 9 for number system. Now, today, this chapter is the completed. Now, start exercise 1.4. Representing, visualize the real numbers on the number line by geometrically. For example, suppose 3.47 bar up to 4 decimal. There one number is given 3.47 बार only 7 के ऊपर है. आपको इस नंबर को 4 डेसिमल तक रिप्रेजेंट करना है. नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है विजुअलाइज मेथड. इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ. उसके थ्रू आप एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. सपोज वन नंबर लाइन इज गिवन द इन राइट हैंड साइड प्लस इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी. एंड नाउ स्टार्ट फ्रॉम द 0 टू द पॉजिटिव, बिकॉज दिस नंबर only represent for the real number, positive real number. Now this number 3.4. So 3.4 lie between 3 and 4. To take exactly 3 and 4. So this number is the 3 and this number is the 4. And divide this part in the 4 equal part. 10 equal part. After 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5, 6, 7, 8 and then 9 and after that exactly 4. So 3.5. After 3.4 the number is the 7. So 3.4 is the number this one and 3.5 is the this one. So this number 3.47 lie between 3.4 and 3.5. To take again this part in the greater part, 3.4 this one and 3.5 this one. Again divide into 10 equal parts. Again after 3.4, 3.41, 3.42, 3.43 and similarly 3.47 and 3.48. We know that 3.47 lie between 3.7 and 3.78. So 3.47 and 3.48 last number and lie between. Take the number 3.47 and 3.478. So take this part 3.477 and 3.478. So we take the number 3.4771, 3.4772, 3.4773 and exactly we find out 3.4777. Up to 4 decimal हमें केवल 4 decimal तक represent करना है. Now 1, 2, 3, 4. So exactly this number is the 3.4777. This is the final answer. There is the clear meaning of represent any real number, any positive real number on the real number line. It's a very simple for you take the any 4 positive real number. It's a very simple method. You can find out using this method. Okay. Now this method is complete and exercise 1.4 is complete. Now after that exercise 1.4 we discuss the exercise 1.5. 1.5 exercise is the very important because in this there are 3 and 4 topic is the complete. Continue this chapter. Now operations on the real numbers. Next topic is the operations on real numbers. Operations on real numbers, that means maybe addition of two rational number, subtraction and addition, subdivision.
For example, suppose 3 plus square root of 2 and 4 plus 3 square root of 2. These two numbers are real numbers. And now add that these two real numbers. This is very simple. Use this simple method. 3 plus square root 2 plus 4 plus 3 square root of 2. Add the like terms. 4 and 3 are the like terms. So 4 plus 3 is 7. And coefficient of square root 2, here 1 and here 3. So 3 plus 1 is the 4 and square root 2 as it is. This is the final answer. यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 इज द इरेशनल नंबर. तो आपको क्या करना है, इरेशनल और रेशनल बोथ आर द रियल नंबर. दोनों को हमने ऐड किया, स्क्वायर रूट 2 एज इट इज. यहाँ वैल्यू पुट नहीं करनी है, आपको इनको सिंपली ऐड करना है. सिंपल. अगर यहाँ माइनस होता है तो ये साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आप इजीली माइनस भी कर सकते हैं. सपोज मैं मल्टीप्लाई करता हूँ. सेकेंड एग्जाम्पल. सपोज वी टेक द सेकेंड एग्जाम्पल, मल्टीप्लाई 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5. Examples are given in your book. Also, you can find out 2 square root of 5. Now, 6 into 2. पहले आप coefficients को multiply करेंगे. 6 into 2 is the 12. And these two numbers are the same. Square root 5 into 5 is 5. So, finally, 12 into 5 is 60. Is the answer. Okay? So, this is the product of these two numbers. Suppose these numbers are not like number. Suppose 6 square root of 5 into 2 square root of 2. अगर ऐसा नंबर आ जाता है तो आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 into 2 is the 12 as it is. And into square root 5 and square root 2. दोनों स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, तो आपको क्या करना है? 5 और 2 को अंदर लेना है. And is equal to 12 square root of 5 into 2 is the 10. It is the answer. Because square root of 10 is not a perfect square number. Perfect square number होता है तो आप उसको square root में find out करके उसको easily calculate कर सकते हैं. Otherwise you can write on the form of square root. इसके लिए ये हमने क्या find out किया? Addition and subtraction and multiplication. Similarly अगर मैं divide करता हूँ दो numbers को, suppose 7 square root of 3 and upon 4 square root of 2. अगर suppose here 7 is not given and 8, so आप 4 और 8 को आप multiply divide कर सकते हैं 2 times. So 2 square root of 3 upon square root of 2. अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है. आप चाहे तो आंसर इस फॉर्म में पुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बट इट इज द नॉट फाइनल आंसर. कभी भी डिनोमिनेटर में आपको स्क्वायर रूट नहीं लिखना है. ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा. तो मुझे क्या करना है? इस स्क्वायर रूट को यहाँ से रिमूव करना है. हटाने के लिए सिमिलरली आपको क्या करना है? वी नो दैट स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय द सेम स्क्वायर रूट 2. सो स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू 2. तो ऑटोमेटिकली वो एक सिंपल रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो मैंने क्या किया? इसको रैशनलाइज किया. This is called the rationalize the denominator, the single number. So divide, multiply. अगर आप यहाँ multiply करते हैं तो आप ऊपर भी उसको multiply करेंगे ताकि number change ना हो. Now answer is this is 2 and this number square root of 2 into 3 is 6 because order is the same. Order आप यहाँ लिख रहे हैं but यहाँ order is the 2. तो 2 को लिखने की जरूरत नहीं. And upon this into this is the 2. And finally this 2 and 2 इसको आप कैंसिल कर सकते हैं and square root of 6. अब ये सेम है तो ठीक है, अदरवाइज उसको उसी फॉर्म में आप लिख सकते हैं. नो डाउट. तो सिंगल नंबर था, हमने इसको डिवाइड कर दिया. ये हो गया आपका ऑपरेशंस ऑन द रियल नंबर्स. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. मैं इस एक्सरसाइज चैप्टर्स को आज कंप्लीट करने के लिए मुझे आपको थोड़ा सा हम फास्ट चल रहे हैं ताकि फर्स्ट चैप्टर आपका आज कंप्लीट हो जाए. आगे नेक्स्ट में बात करता हूँ. सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे यहाँ पे अपने रैशनलाइज किया तो मैं वापस से एक बार बात करूँगा 2 नंबर्स के लिए
rationalize the denominator. रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, अभी सिंगल नंबर को हमने रैशनलाइज किया था। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है। आगे चलकर हम एक आंसर्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमें ये रैशनलाइज करना होगा। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, 1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। सपोज the denominator is the 2 plus square root 3. Now, but this denominator is given in the form of real number, means irrational number. अब मुझे इसको simplest form में लिखना है, तो how can you find its simplest form? This is very simple. We know that a plus b and a minus b, product of these two number is the a square minus b square. It is the identity a plus b into a minus b is a square minus b square. And square root 2, square of square root 2 is equal to, automatically square root is the remove. For example, suppose square root of 3 is equal to 3. Square of square root of 2 is equal to 2. Square root of 7 is equal to 7. क्या देखा आपने? जिसका भी आप स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पर नंबर 3 आ गया, यहाँ 2 और यहाँ 7, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमें एक नंबर लेना है, यह आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कब आएगा? अगर आप ए प्लस बी को ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं, या ए माइनस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ मुझे रैशनलाइज करना है। दिस मेथड इज नाउन एज द रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। इन 9th क्लास इज वेरी सिंपल, बट आगे चलकर हम डायरेक्टली इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस है, तो आप इसको 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम नंबर आप ऊपर लेंगे, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 1 इंटू दिस 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 एज इट इज। न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट आता है, नो प्रॉब्लम, बट डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं आना चाहिए। 2 square means 2a square minus b square, a plus b into a minus b. वो आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ। 2 minus square root 3 as it is. 2 square is 4 and minus this square is 3. This number is as it is, and 4 minus 3 is 1. Finally, now 1 is the convert into without square root. ऐसा एक एग्जांपल और लेके चलते हैं हम सिंपली। सपोज 5 अपॉन, सेकेंड एग्जांपल, 5 अपॉन स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5. हाउ कैन यू रिमूव द स्क्वायर रूट? हियर द माइनस, सो यू राइट स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5. 5 into this one, 5 bracket square root 3 plus square root of 5. यहाँ मल्टीप्लाई कर नहीं सकते बिकॉज 5 इज द एग्जैक्टली रियल नंबर और अंदर आपको इरेशनल नंबर दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर ऑफ दिस नंबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 एज इट इज, एंड this square is 3 and minus this square is 5 and is equal to 5 square root 3 plus square root of 5 upon 3 minus 5 is minus 2. Minus 2, but this minus is right in numerator. एक चीज हमेशा याद रखिएगा, माइनस कभी हम डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं, इसलिए माइनस को हमेशा न्यूमरेटर में पुट करना है आपको। तो ये माइनस ऊपर जाएगा, तो -5 and bracket square root 3 plus square root of 5, and in denominator only write the positive number. In denominator always write the positive number. For this, अगर कभी भी डिनोमिनेटर में नेगेटिव नंबर आता है तो उस नेगेटिव को आप ऊपर पुट कर सकते हैं और ऊपर पुट करना है आपको। तो ये आपने क्या सीखा? rationalize the denominator. So this topic is also complete. Next topic
is the draw and represent a real number on the real number line. This is the by geometrically. This is the also very and very important for the class 9. अभी जो हमने जो पढ़ा वो आप फर्दर क्लास में आप यूज कर सकते हैं, बट हियर सपोज शो दैट स्क्वायर रूट ऑफ x वेयर x इज एनी रियल नंबर, ये कोई भी एक रियल नंबर है, दिस स्क्वायर रूट ऑफ x सो दैट की जगह आप रिप्रेजेंट लिख दीजिए, represent square root of x on the real number line where x is the any real number. अब इसको रियल नंबर पे कैसे आपको ड्रॉ करना है, मैं एक सिंपल मेथड यूज कर रहा हूँ, उसको पहले आप ध्यान रखें और उसको आप याद भी रख सकते हैं. अगर आप कोई भी स्क्वायर रूट x है, सपोज x इक्वल टू 3.5, 3.2, 4.7, 9.2, एनी रियल नंबर. अब ऐसे नंबर्स को एक रियल नंबर्स पे अगर आप फाइंड आउट करना चाहें तो आप कैसे करेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर रूट अभी सिंपल नंबर में है तो आप इजीली आप रियल नंबर लाइन पे फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ये नंबर है एक स्क्वायर रूट. अब स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3.2, स्क्वायर रूट ऑफ 4.7, स्क्वायर रूट ऑफ 9.2. अब आप कहेंगे कि सर इनको नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर मैं एक ऐसा मेथड यूज कर रहा हूँ ज्योमेट्रिकली, जो इन नंबर्स को भी हम एक रियल नंबर बेस पे इजीली आप ड्रॉ कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मेथड को. ओके, नाउ स्टार्ट. सपोज वी टेक द स्क्वायर रूट ऑफ x ले लिया मैंने, वो सभी नंबर्स के लिए हो जाएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. एक नंबर आपने यूज किया, उस नंबर के बेसिस पे आप सभी नंबर यूज कर सकते हैं. थोड़ा सा फास्ट चलते हैं यहाँ पर. नाउ फर्स्ट वी टेक द नंबर x एंड ऐड 1, x plus 1. First we draw a line geometrically. Suppose x is 3.5, to draw 3.5 AB. The length of AB is the x, means AB is equal to x. And add 1 C, where BC is 1 unit. अब ये x unit हो गया 3.5. Unit means centimeter, meter, but generally here we use the centimeter. Is the सेंटीमीटर और यहाँ 1 सेंटीमीटर मैंने आगे और इसको ड्रॉ किया. सॉरी, मुझे क्या करना है, ड्रॉ द सेमी सर्कल ऑफ AC. AC पे मुझे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है. सो फॉर दिस फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ AC. प्रोसेस को मैं लिख नहीं रहा हूँ, प्रोसेस ऑलरेडी बुक में गिवन है, आपको मैं समझा रहा हूँ. Find the midpoint of AC. Suppose this O is the midpoint of AC. Easily आप कैलकुलेट कर सकते हैं. And find the semicircle. Semicircle on AC. That means OA and OC are the radius of this circle. Is clear? And draw a perpendicular on B. B पर एक perpendicular draw कर रहा हूँ. इस B को मैं O लेट कर रहा हूँ. O is not O, this is the 0. यहाँ से आपकी नंबर लाइन स्टार्ट होगी और ये आपकी नंबर लाइन है प्लस इंफिनिटी 0, 1, 2, 3, 4. क्योंकि अंडर रूट पे जो भी नंबर ले रहे हैं ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर. यहां से आप सेमी सर्कल ड्रॉ करके आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना. परपेंडिकुलर आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं. दिस परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट एट दिस सेमी सर्कल. सपोज यहां पर ये कट करता है BD. एक्चुअली दिस BD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x. ये जो लेंथ है यही स्क्वायर रूट ऑफ x है और इसी लेंथ के बेसिस पर मैं यहां से एक लाइन कट करूंगा
इस नंबर लाइन पे, जहां पर ये नंबर लाइन पे कट होती है, यहां से सपोज यहां कट हो गई और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया है ई, यही आपके लिए है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ऑन दिस नंबर लाइन वी कैन फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब आप कहेंगे सर ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कैसे हुआ? आप इसको इजीली प्रूव भी कर सकते हैं। इसको प्रूव करने के लिए इस पॉइंट ई को मैं ज्वाइन ई टू ओ, मैं इसको ओ से ज्वाइन करता हूँ और आप देखेंगे यहाँ आपने 90 डिग्री एंगल बनाया, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। OBE इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। इसको इजीली प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पर बहुत ही सिंपल एक मेथड यूज कर रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम, जो आप इजीली हम पहले भी हम पढ़ चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो हाउ कैन यू फाइंड आउट दिस PE? सॉरी, दिस इज नॉट E, इट इज द D। ये अपन ने D लिया था। You write the x plus 1, it is the D. So BD is equal to square root of x. ये अपन को फाइंड आउट करना। तो BD फाइंड आउट करने के लिए BD स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। दिस OD आपको मालूम है, why? Because OD is the radius, और रेडियस कितना है? OA, और वही आप यहाँ से सेमी सर्कल ले रहे हो, तो OD इज द सेमी सर्कल ऑफ दिस वन। और सेमी सर्कल क्या है? दिस OA एंड OC आर इक्वल। टोटल आपने क्या किया था? दिस इज द AC इक्वल टू x प्लस 1, ये हमने x प्लस 1 लिया, और रेडियस इज द हाफ ऑफ दिस वन, इट इज द डायमीटर x प्लस 1 अपॉन 2। सो यहाँ हम लिख सकते हैं दिस इज द x प्लस 1 अपॉन 2 एंड स्क्वायर, सो इट टेक द होल स्क्वायर एंड माइनस OB। अब OB कैसे कैलकुलेट करते हैं? इज वेरी सिंपल। OB इज इक्वल टू, OB को आप लिख सकते हैं AB माइनस OE। व्हाट इज AB? AB इज इक्वल टू x, पहले से अपन ने इसको x लिया है, माइनस OA इज द अगेन रेडियस एंड रेडियस इज द x प्लस 1 अपॉन 2। इसको आप एक बार सॉल्व करना, इसको सॉल्व करोगे तो x माइनस 1 अपॉन 2 ये आपको मिलेगा। इसको सॉल्व मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करना इजीली। x माइनस x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन 2, दैट मीन्स इट इज x माइनस 1 अपॉन 2 एंड अगेन यू टेक द स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करें कंप्लीट, x प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, इसको जब सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा 4x अपॉन 4। आप करके देख लीजिएगा इजीली। ये आपको मिला BD स्क्वायर, मीन्स BD स्क्वायर इज इक्वल टू 4 से 4 में कैंसिल कर रहा हूँ, तो आपको मिलेगा x स्क्वायर, यहाँ से हटेगा तो BD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, तो ऑटोमेटिकली दिस BD इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। इसी लेंथ का आर्क में जब कट करता हूँ इस नंबर लाइन पे, तो यहाँ पे E पे कट होगा, और ये जब E पे कट होता है तो हम कह सकते हैं कि BD और ये BE दोनों आपस में इक्वल है। दैट मीन्स O से जब जीरो से जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये लेंथ E ऑटोमेटिकली स्क्वायर रूट ऑफ x हो जाती है। तो क्या कैलकुलेट किया हमने? हम फाइंड आउट कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव रियल नंबर ऑन द रियल नंबर लाइन यूजिंग दिस ज्योमेट्रिकली मेथड। ये आपने फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सिंप्लीफाई द एनी रियल नंबर्स यूजिंग, ये एक सिंपल सिंप्लीफाई करना है। फॉर एग्जांपल 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7, नाउ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, इनको सिंप्लीफाई करना है। ये तो आप सिंप्लीफाई कर ही सकते हो, आप करते आ रहे हो प्रोडक्ट। नाउ 5 इंटू 2 10, देन 5 इंटू दिस प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3, एंड देन दिस इंटू दिस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7, एंड दिस इंटू दिस स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 3 21। कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है इसमें, अगर लाइक टर्म्स हैं तो प्लस करिए, अदरवाइज यही आपका आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, जो आप छोटी 8th क्लास में आप पढ़ चुके हो। ये मेरा टॉपिक है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये मेरी लास्ट एक्सरसाइज है। अभी जो आपने पढ़ा अभी तक, जो एक्सरसाइज 1.5 को डिनोट करता है, यहां तक आप एक्सरसाइज 1.5
1.4 हम पहले कर चुके हैं, 1.4 जो अपन ने किया था वो पहले एक्सरसाइज था, और 1.5 अभी तक मैंने जो भी पढ़ा है वो 1.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट्स क्लियर? 1.4 मीन्स विजुअलाइज द एनी रियल नंबर ऑन द रियल नंबर लाइन, एंड 1.5 जो मैंने अभी ने डिस्कस किया फॉर दिस नंबर and on the real number line, and for the simplify the real numbers and rationalize the denominators. Now last exercise is the 1.6. Exercise 1.6. After this exercise, this chapter is the complete. लोग ये आप सिंपली पढ़ चुके हैं, a raised to the power m into and a raised to the power n. अगर बेस सेम है तो आप ये यूज कर सकते हैं a raised to the power m plus n. Second, a raised to the power m upon a raised to the power n is equal to a raised to the power m minus n. Third, a raised to the power m whole power n, this is equal to a raised to, दोनों पावर को मल्टीप्लाई कीजिए m into n. Fourth, a raised to the power 1, आप इसको लिख सकते हैं a raised to the power minus 1. Fifth, a raised to the power m into b raised to the power m. अगर पावर सेम है तो आप इसे यूज कर सकते हैं ab होल पावर m. इन रूल्स को आप यूज करते हुए आप काफी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. 64 होल पावर अगर आपको यूज करना है 2, so 64 is the 8 power 2 and whole power 2, so 8 power 4. 8 को आप लिख सकते हैं 2 power 3 and whole power is the 4, so 2 raised to the power 4 into 3, 12. It is the answer. सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए मैंने क्या किया, 64 एक एग्जांपल लिया. 64 is the square of 8. 8 8 is 64, so 8 into 2 and this power 2. 2 into 2 is the 4. 8 को मैंने लिखा, ये 2 को वापस आप 2 की पावर में यूज कर सकते हैं. 2 raised to the power 3 is the 8 and whole power is the 4. 4 into 3 this is the 12, so 2 raised to the power 12. आगे ये सॉल्व नहीं होगा, so 2 raised to the power 12 is the final answer. एक्सपोनेंट फॉर्म में आपको क्वेश्चन दे रखा है तो आंसर भी आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सपोनेंट फॉर्म में ही पुट करना है, यानी कि आप इसको पावर फॉर्म में ही वापस इसको आंसर को यूज करना है. तो फाइनली 1.6 एक्सरसाइज के अंदर ऐसे ही क्वेश्चंस कुछ गिवन है. इन रूल्स को यूज करते हुए इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करेंगे. आज इस टॉपिक को मैं कंप्लीट करता हूँ, नॉट टॉपिक, मेरा चैप्टर ये कंप्लीट होता है. इस चैप्टर के बाद में हम सेकंड चैप्टर की बात करेंगे. अभी मैं इसको यहीं पे ऑफ करता हूँ. ओके स्टूडेंट, नाउ थैंक यू एंड गुड डे.